स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello aspirants, my name is Divakar Bothra. As you are aware, and if you are not aware, at Study IQ we will be starting our optional foundation batch on 18th of October 2022. The timing of the batch is 1 to 4 p.m. The duration of the course would be roughly around 5 months. The fees of the course right now is 18,999, and if you use the code DIVLIVE, you get the same course for 12,500. The validity of course would be 24 months, where you will able to access the recorded classes or our platforms for the next 24 months from the date of enrollment or from the date of the start of the course. Now the point which comes is, why sociology at Study IQ with Divakar Bothra? There are multiple organizations which largely conduct sociology, because from past 2 years, if you look into the UPSC data, sociology has been one of the highest taken, not one, the highest taken optional as far as UPSC annual reports. In such circumstances, many people are largely choosing sociology as their optionals. So why you should choose us? You have chosen sociology is one aspect, but why us? Why not others? As far as this discussion is concerned, almost all the teachers are really good as far as sociology is concerned, because I firmly believe the person who is teaching would at least be more knowledgeable than the person who will largely be listening to that particular faculty or a mentor or a teacher. So point is, all the teachers are good enough. Accessibility is the most important part. So जिस teacher को आप access कर सकते हो, I think you should join that. But just there are certain features of our course which I have personal faith after having a teaching experience of 8 years at organizations like Murnal, Vajiraman Ravi, KHG and others. I personally feel that there are certain features, and I have also been through various coaching institutions during my preparations, and I believe there are certain issues which comes up during preparations. बहुत सारी चीजें कुछ courses के अंदर lack करती हैं, and this course is specifically designed by the person who is more experienced in UPSC as such. So technically कुछ features वो बताता हूँ. Specifically उसमें एक feature है जो students are more concerned is the material aspect. सोशियोलॉजी में सर पढ़ना क्या है? व्हाट टू स्टडी? इफ यू लुक इनटू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, आप एक चीज नोट करते हो कि बहुत सारे रेफरेंस सोर्सेस हैं और बहुत सारे कोचिंग मटेरियल्स हैं. रेफरेंस सोर्सेस की बात करूं, हार्लोम्बस एंड हॉलबॉर्न, रिट्जर, निस्बेट, गिडन्स. पेपर 2 के लिए बहुत सारे सोर्सेज आते हैं. योगेंद्र सिंह की मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, सोशल चेंज ऑफ M.N. श्रीनिवास, वीना दास, हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी, हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी. ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं. शायद ये बोर्ड भी कम पड़ जाएगा और शायद समय भी कम पड़ जाएगा उनको लिस्ट करने के लिए. अगर कोचिंग मटेरियल्स देखें तो बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है जो अपने मटेरियल प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को इन ऑर्डर टू लार्जली प्रिपेयर देयर सोशियोलॉजी एज सच. तो इस सर्कमस्टेंसेस में मान लो हमारी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन है Study IQ. तो Study IQ भी तो सर मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, तो टेक्निकली बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड कर रही है, तो मैं क्यों Study IQ ज्वाइन करूं? अ पॉइंट इज दिस, अगर मेजॉरिटी कोचिंग मटेरियल्स अगर आप देखते हो विथ प्रियोर एक्सपीरियंस, आई एम सेइंग यू दिस, इज प्रिपेयर्ड बाय कंटेंट डेवलपर्स. 99% मटेरियल्स विच यू विल बी रीडिंग वुड बी प्रिपेयर्ड बाय कंटेंट डेवलपर्स. कुछ और भी किताबें हैं जो रेफरेंस, या फिर रेफरेंस तो नहीं बोलूंगा, वो बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा इस छोटी सी किताब के लिए, नितिन सांगवान, जो एक प्रॉपर गाइड के रूप में है, जहां पे आपको सारा कंटेंट अरेंज मिल जाता है. जो रिवीजन कर रहा है उसके लिए अच्छा है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा है उसके लिए अच्छा नहीं है. क्यों? बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट है इस किताब के अंदर जो टेक्निकली रॉन्ग दिए हुए हैं. आप जाओगे देखोगे तो समझ में आएगी. तो मटेरियल्स एक कंटेंट डेवलपर प्रिपेयर करता है जिसने कुछ मेंस लिखे होंगे या इंटरव्यूज दिए होंगे. उनकी काबिलियत पे मुझे कोई शक नहीं है, बट मुझे प्रॉब्लम ये है कि टीचर के मटेरियल एक टीचर का मटेरियल होता है.
सो जो एंद्रे बेतले ने विलेज स्टडी की, वो एंद्रे बेतले की विलेज स्टडी थी, उसको लिखना अपने वर्ड्स के अंदर बहुत सारी चीजों को मिस आउट करना। दूसरी चीज, ये बहुत कंसाइंस होते हैं कि एक लिमिटेड एस्पेक्ट पे 300-400 स्टूडेंट के साथ, क्योंकि स्टूडेंट की डिमांड रहती है एक छोटा सा मटेरियल चाहिए सर हमें जिसको हम रिवाइज कर ले। तो अब कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज स्टूडेंट्स आर देयर रिस्पेक्टिव मार्केट, करते हैं क्या है, टेक्निकली वो मटेरियल एक सिनॉप्टिक फॉर्म में बनाते हैं। और अगर 400-500 पेज में सोशियो होती तो शायद हर कोई सोशियोलॉजी लेके रखता। तो एक बहुत कंसाइंस फॉर्म में होते हैं कोचिंग मटेरियल्स, और इन मटेरियल्स के अंदर मेजरली कंटेंट जो होता है एक कॉपी पेस्टेड भी होता है, और एक कहीं ना कहीं एक कंटेंट डेवलपर जो हो सकता है बहुत अच्छा, मेरे से भी बेहतर बनाए मटेरियल, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट अगर इतना कंसाइंस मटेरियल हम पढ़ते हैं तो शायद हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जो है वो वायलेट हो जाती है, नहीं होगी कभी भी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। तो ठीक है सर, मटेरियल नहीं पढ़ के हम रेफरेंस सोर्सेस पढ़ लेंगे। अब जब रेफरेंस सोर्सेस की गैलेक्सीज में या दुनिया में जाते हैं तो इतने सारे रेफरेंस सोर्सेस हैं कि टेक्निकली अगर आपको कवर करनी है ऑथेंटिकली, क्रेडिबली सोशियोलॉजी के रेफरेंस सोर्सेस, तो आपको कम से कम 1.5 साल चाहिए, एवरी डे 8 आवर्स ओनली स्टडिंग सोशियोलॉजी। और उतना टाइम न तो मैं समझता हूं आपके पास है और न शायद किसी भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के पास होगा। सो टेक्निकली अब इन सब सर्कमस्टेंसेस में सर आप ऐसा क्या दे रहे हैं? द मटेरियल विच वी आर गोइंग टू प्रोवाइड आर डिवाइडेड इनटू सर्टेन कैटेगरीज। हमने मटेरियल को ही सॉर्ट आउट किया ताकि आपकी प्रिपरेशन सॉर्टेड आउट रहे। क्या सॉर्ट आउट किया हमने मटेरियल? पहला मटेरियल जो होगा वो रहेंगे जिस बैच, जो बैच आप ज्वाइन करोगे उस बैच में हम, देयर वुड बी अ पर्सन हु विल बी राइटिंग द एंटायर लेक्चर। तो आपको हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है, वो सारा का सारा मटेरियल आप सबको प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक होता है हैंड रिटन मटेरियल, जो क्लास चल रही है उसका सारा मटेरियल, आपको रनिंग नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से क्लास सुनो, कॉन्सेप्ट समझो, डाउट क्लैरिफाई करो। हैंड रिटन मटेरियल का काम आपके जगह कोई और कर रहा होगा, और वो पूरा का पूरा मटेरियल जो क्लासेस में बोला गया वो सारी शब्द और सारी चीज उसके अंदर होगी विथ एग्जांपल्स। सेकेंड टाइप ऑफ मटेरियल होगा अगेन हैंड रिटन। अरे सर ये 2 हैंड रिटन कैसे? ये एक पर्टिकुलर पर्सन जो क्लास चल रही है उस क्लास का मटेरियल लिख रहा है, और ये जो हैंड रिटन मटेरियल है वो मेरा पर्सनल मटेरियल होगा। जो मटेरियल मैंने मेरी सक्सेस के लिए बनाया था, कि मेरे सक्सेस के लिए, और उसको अपडेट किया है रेगुलरली 16 टाइम्स, बनाने के बाद में जो मटेरियल आया वो मटेरियल दूंगा। जो मैंने खुद मेरी तैयारी के लिए मटेरियल बनाया था वो हैंड रिटन, मेरे खुद के हैंड राइटिंग में जो नोट्स बने हैं वो आपको दिया जाएगा। और मेरे हिसाब से मैं मानता हूं कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखा होगा कि आप एक बार पढ़ लोगे तो शायद दिमाग में चीजें फिट हो जाएगी। उससे आगे बढ़ूं तो प्रिंटेड मटेरियल, मैंने 2 किताबें लिखी है और वो दोनों किताबें आपको दी जाएगी, जहां पे एक के अंदर हम देखेंगे कि कैसे एक बहुत सारे मल्टीपल स्कॉलर्स की किताब बनाई है मैंने, और दूसरा जो हमारा प्रिंटेड मटेरियल पेपर 1 और पेपर 2 का है। ये भी पेपर 1 का होगा, ये भी पेपर 2 का होगा, ये भी पेपर 1 प्लस पेपर 2, और ये भी पेपर 1 और प्लस पेपर 2, दोनों मटेरियल रहेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ पेपर 1 का मिलेगा आपको, ये 3। और चौथा जो है करंट बेस्ड मटेरियल, और ये करंट बेस्ड किससे निकालेंगे हम? ईपीडब्ल्यू, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। जो चीजें सोशियोलॉजिकली रेलेवेंट लगेगी, करंट एग्जांपल्स, करंट ओपिनियंस या फिर करंट हैपनिंग जो सोशियोलॉजी में हम किसी पार्ट के सिलेबस में यूज कर सकते हैं, वो मटेरियल। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्टैंडर्ड आंसर्स की पीपीटी। जैसा कि आपको पता है मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हमारे कोर्स के बारे में, आप जाके देखो उसके अंदर क्या हमारे फीचर्स है कोर्स के। हम हर डे 15 मिनट से 10 से 15 मिनट एटलीस्ट डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसके जो स्टैंडर्ड आंसर्स है वो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन के फॉर्मेट में है। इसका वीडियो ऑलरेडी उपलब्ध है स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे, आप देखो एक बार समझने के लिए कि क्या टाइप की पीपीटी की बात कर रहा हूं। वो पीपीटीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी PDF फॉर्म में या PPT फॉर्म के अंदर। सो टेक्निकली आंसर्स मिलेंगे आपको स्टैंडर्ड्स, जो मैंने खुद बैठ के हाथों से बनाए होंगे। करंट बेस्ड मटेरियल, मेरा हैंड रिटन, मेरे प्रिंटेड मटेरियल, और आप जिस बैच में हो उस बैच के हैंड रिटन मटेरियल्स। सो टेक्निकली सर इतना सारा मटेरियल रहेगा, यस इतना सारा मटेरियल रहेगा, लेकिन वो अलग नहीं है, वो सेम टाइप का सा रहेगा, बिकॉज एसेंस सबके अंदर सेम होगी, और वो एसेंस होगी मेरे नॉलेज की और मेरे क्लासेस की। सो टेक्निकली ये सारी चीजें पर्सनली मैं खुद बनाऊंगा,
सिर्फ इसको छोड़ के जो ये पर्सनली मैं बोलूंगा वो लिखेगा, बाकी सारी चीजें पर्सनली वुड बी मेड बाय मी, नॉट बाय एनी कंटेंट डेवलपर। सो टेक्निकली इसके बाद आपको कुछ पढ़ना है क्या? एक भी रेफरेंस सोर्स मत पढ़ना। क्यों? जो मेरा हैंड रिटन मटेरियल है और जो मेरा प्रिंटेड मटेरियल है, जो मैंने खुद बनाया, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, उसके अंदर हार्लम्बस, एमए इग्नू, बीए इग्नू, रिट्जर और बहुत सारे मटेरियल्स, इसके अंदर सोशल चेंज, एमआईटी, एसबीआईएन, हर किताब का एक एसेंस, वीना दास, हर चीज का एक एसेंस इसमें मिलेगा आपको, चाहे आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। और अगर इतना मटेरियल क्लास के हिसाब से लिख लिया, कर लिया, तो टेक्निकली यू आर एट अ बेटर प्लेस। अब आपको अगर मैं देखूं क्या बनाना पड़ रहा है, रनिंग नोट्स कोई और बना रहा है, मेरा खुद का मटेरियल बना बनाया मिलेगा, और उसके बाद करंट बना बनाया मिलेगा, स्टैंडर्ड आंसर्स बने बनाए मिलेंगे, तो आपका गोल क्या होगा? आपका गोल है कि इनकी समरी सिर्फ शायद 100-150 पेजेस में आपने अलग से लिख ली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्लासेस के अंदर, जब मैं बताऊंगा कि कैसे आपको सिनॉप्टिक बनानी है। तो ये है हमारे कोर्स का एक स्पेसिफिक फीचर जो शायद मुझे नहीं लगता कहीं और मिलेगा, बट स्टिल अगर मिलता है तो यू शुड ज्वाइन दैट एज सून एज पॉसिबल। So if you are interested, please join the course. See you on 18th. Best of luck. Study hard. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।